Hello everyone, welcome to Pahuja Law Academy. This is Gini Rajvanshi with yet another interesting video for all of you today. So the topic for the video today is how to crack judiciary exam in your first attempt. This is the very important question that every student who starts its preparation wants to know, right? Ki how to crack judiciary in very first attempt. ये सभी स्टूडेंट्स का क्वेश्चंस रहता है, right? So what I have done, I have found a formula for all of you. Very easy formula, and trust me, if you stick to this formula has been proved by many students here in PLA. This formula is a Marvel's formula. Yes, you heard it right. Marvel's formula. Marvel movie सबको ही पसंद होती है ना? Everybody watches Marvel movies, Superman, Iron Man. तो बिल्कुल हमें भी एक मार्वल्स फॉर्मूला फॉलो करना है. दिस फॉर्मूला इज मेड बाय मी पर्सनली, राइट? सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस मार्वल्स फॉर्मूला. So in this Marvel's formula, M stands for mock test, right? The most important thing or the most important point that students miss, they are just preparing, reading, writing, but they are not attempting questions. They are not giving the test. And if you don't attend the questions, whether it is of prelims or it is of mains, your chances of success are reduced. Why? Because the more number of questions you attend, the more brighter it becomes for you to understand the analogy of the questions, to understand what kind of questions are asked in the exam, right? So M stands for mock test. You have to do it. A stands for answer writing. This is the most important point again that students generally miss. They just read and they just want the teachers to give them the answer, that how answers are written. They ask the teachers to give a format of answer writing. Listen to me, there is no stick format for the answer writing, right? You have to write your own answers, and then you have to get it checked by your teachers, by your mentors, and then they will tell you what things are missing in your answer. Once you become perfect in answer writing, trust me, nobody can take out your selection. Nobody can say that you will not be selected. Why? Because when we are talking about mains, the most important point is answer writing, right? Now R. See, what is R? R is the reverse technique. This technique is again evolved by me, wherein I specifically state that don't prepare for prelims, don't prepare for interview, just prepare for mains. आपको सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए तैयारी करनी है. प्रीलिम्स की तैयारी खुद ब खुद हो जाएगी, इंटरव्यू की तैयारी खुद ब खुद हो जाएगी. अगर आपकी तैयारी डे 1 से फोकस्ड है मेंस को लेकर, आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं. मेंस के लिए देखिए, आप बैराक भी पढ़ेंगे, आप केस लॉज भी पढ़ेंगे, आप कंटेंट भी पढ़ेंगे, आप कोई रेफरेंस बुक भी फॉलो करेंगे और आप क्लास नोट्स भी पढ़ेंगे. तो क्योंकि मेंस एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होती है, हम इसको ऐसे मान लें कि ये मेंस है, ये प्रीलिम्स है और ये इंटरव्यू है, उल्टा होता है, ठीक है? लेकिन बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे जनरली फोकस करते हैं कि बस किसी तरह पहले प्रीलिम्स निकल जाए, फिर हम मेंस के लिए पढ़ लेंगे. कैसे पढ़ लेंगे आप? मेंस में या प्रीलिम्स के एग्जाम में ज्यादातर 1 या 2 महीने का गैप होता है, बस इससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको. तो प्लीज, यही सबसे बड़ी गलती है जो बच्चे करते हैं. और क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं, आपको एग्जाम निकालना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको एग्जाम निकालना है तो भाई आपको फॉलो करना पड़ेगा रिवर्स टेक्निक या रिवर्स मेथड, ठीक है? W स्टैंड फॉर वीक एरियाज. Please work on your weak areas. Why? Like for example, you like to study criminal law. सबका कुछ ना कुछ specific law favorite होता है, लेकिन किसी ना किसी को, आपको ये बहुत ऑनेस्टली पता होगा कि आपका थोड़ा जो लॉ है वो कौन सा वीक है. जैसे किसी को सीपीसी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, उसका वो पोर्शन वीक होता है सिविल लॉज का. किसी को लोकल लॉज में थोड़ा प्रॉब्लम होती है ना? तो जो आपको अच्छे से आता है वो तो आपको पढ़ना ही है, वो तो आपको अगेन एंड अगेन रिवाइज करना ही है. लेकिन आपको अपना ज्यादा टाइम किसको देना है? उस एरिया पे जो है आपका वीक एरिया, राइट? तो आपको उस पे ज्यादा फोकस करना है, और जो चीज आपको अच्छी लगती है पढ़नी, जो आपको ऑलरेडी आती है, आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, वो तो आप पढ़ ही लेंगे.
ठीक है। देन कम्स ई। ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी एंड एफिशिएंसी। देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बिना एनर्जी एफिशिएंसी और पेशेंस के नहीं हो सकती, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी एफिशिएंट, यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन। आपको अपने लिए डिसिप्लिन लाना ही होगा अपने शेड्यूल में। आपको प्रॉपर एक शेड्यूल बनाना होगा जिसको आपको फॉलो करना होगा, आपको स्टिक रहना होगा उस शेड्यूल पे, ठीक है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है कि आपने एक दिन पढ़ाई की और 4 दिन नहीं की, या फिर आपने बस सैटरडे संडे पूरी पढ़ाई कर ली और पूरे हफ्ते आप मजे कर रहे हैं। इट इज अबाउट द कंसिस्टेंसी, इट इज अबाउट द डिसिप्लिन एंड इट इज अबाउट द डिटर्मिनेशन। आपको इतना एफिशिएंट होना ही पड़ेगा, अपने आप को उतना एफिशिएंट बनाना पड़ेगा कि आप डेली बड़े ही कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है, दिस इज अ मिथ कि आपको 12 घंटे पढ़ना है, 16 घंटे पढ़ना है, नहीं। अगर आप डेली 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हैं और आप डेली पढ़ रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ, ट्रस्ट मी, नो वन कैन बीट। कोई आपको बीट नहीं कर सकता, ठीक है। एल स्टैंड्स फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। ये मैं अपनी क्लासेस में भी बार बार बताती हूँ कि अपने रिसोर्सेज को आप जितना लिमिटेड रखोगे उतना ज्यादा आपका फेयर चांस होगा सक्सेस का। क्यों? हमारा कोई फ्रेंड बुक लाया, अरे इतनी मोटी बुक है, चलो मैं इससे भी पढ़ लेता हूँ, उससे भी पढ़ लेता हूँ, इससे भी पढ़ लेता हूँ। नहीं पढ़ना आपको भाई। आपको जो एक बुक बड़ी अच्छी लग रही है, जो एक ऑथेंटिक बुक है, मैं अपनी क्लास में भी बोलती हूँ ऑथेंटिक रेफरेंस बुक होनी चाहिए। सिर्फ एक बुक काफी है, ओनली वन बुक इज इनफ। वन ऑथेंटिक रेफरेंस बुक प्लस योर क्लास नोट्स प्लस योर बेयर एक्ट। ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है जुडिशरी के एग्जाम में। सो प्लीज कीप योर रिसोर्सेज लिमिटेड एंड उन रिसोर्सेज को आपको बार बार रिवाइज करना है। आपको नए रिसोर्सेज ऐड नहीं करने हैं, वरना आपका सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा। एंड इट इज ऑल अबाउट द सिलेबस। एंड लास्टली, S stands for syllabus and socio-legal topics. Syllabus obviously जिस जंग में आप उतरने जा रहे हैं उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको सिलेबस, तो पहली बात, जिस भी स्टेट के लिए आप प्रिपेयर करने वाले हैं उसका सिलेबस आपको थरली पता होना चाहिए कि वहां पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। यू शुड बी वेरी थरो विद द सिलेबस। One more thing I have written is the socio-legal topics. Why I have written socio-legal topics? Because these topics come in the part of essay. ये essay का पार्ट है, ये आपके करंट अफेयर्स का पार्ट है। इसीलिए आपको एडवाइस किया जाता है टू रीड अ न्यूज़पेपर डेली। जुडिशरी एस्पिरेंट्स ये गलती करते हैं कि वो सिर्फ लॉ में ही फंस के रह जाते हैं, है ना, कि मैम लॉ ही इतना सारा है, वही खत्म नहीं हो रहा, करंट अफेयर कैसे पढ़े, न्यूज़पेपर कैसे पढ़े। No, you take out time, you read the newspaper daily for at least half an hour or 40 minutes. आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्यों? क्योंकि उससे आपको सिर्फ करंट अफेयर्स में हेल्प नहीं मिलती है, उसके एडिटोरियल्स में सोशियो लीगल टॉपिक्स भी आते हैं। अभी सेम सेक्स मैरिज का जजमेंट पास हुआ, मान लीजिए आपने पूरा जजमेंट पढ़ दिया, लेकिन द हिंदू में बड़ा ही प्यारे एडिटोरियल्स आए 2-3 दिन, जहां पे अलग अलग सोच बताई गई लोगों की। अब आपको ओपिनियन कैसे फॉर्म होगा? जजमेंट पढ़ के तो आपको ओपिनियन फॉर्म होगा नहीं, जजमेंट तो स्टैटिक है, जज को जो लगा उन्होंने वो जजमेंट दे दिया। नाउ यू हैव टू फॉर्म योर ओन ओपिनियन, और वो आपका ओपिनियन कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? वो ओपिनियन रिफ्लेक्ट होगा आपके एस्से कॉलम में, आपके करंट अफेयर्स में, वो आपको वहां हेल्प करेगा। एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प इन योर इंटरव्यू। वाई? बिकॉज ट्रस्ट मी, अब इंटरव्यू में वो सिर्फ लॉ चीजें नहीं पूछते हैं, लीगल चीजें नहीं पूछते हैं, they want to know your opinion on the current legal and social topics. they want to know कि आप कैसे पर्सनालिटी हैं, what are your opinions, what are your thinking. because जो पोस्ट आप होल्ड करने वाले हैं जज की, वो कोई ऐसी मामूली पोस्ट नहीं है, उसके लिए आपका अपना ओपिनियन बहुत मैटर करता है। दूसरे का ओपिनियन क्या है वो तो आपको सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, यू हैव टू फॉलो इट, बट व्हाट इज योर थिंकिंग एंड ओपिनियन, राइट? सो वंस अगेन, दिस इज हाउ आई हैव, मैंने इजाद किया है आपके लिए मार्वल फॉर्मूला। M इज फॉर मॉक टेस्ट, A इज फॉर आंसर राइटिंग, R इज फॉर द रिवर्स टेक्निक। प्लीज प्रिपेयर फॉर मेंस, प्रीलिम्स और इंटरव्यू खुद हो जाएगा, ट्रस्ट मी। W इज फॉर वर्क ऑन योर वीक एरियाज। E is for please be very energetic and efficient. Please take care of your health also.
Do not compromise with your health. L is for keep your resources very limited. And S, please know the syllabus thoroughly and please invest your time and energy and mind in the socio-legal topics also. So this is my comprehensive formula of the Marvel's approach, wherein according to me, if you follow this formula religiously, trust me, nobody can stop you to crack the judiciary exam in the very first attempt, right? I hope you all like this video. You will try to follow this formula. Please share this formula and video with all of your friends. Please write the comments in the comment section, whatever the feedback you liked about the video. Thank you so much. Have a nice day.